بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نجوم کی دنیا۔ آج ہم بات کریں گے 15 اپریل سے لے کر 21 اپریل کا یہ ہفتہ برج سنبلہ یعنی ورگو والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ کیا یہ ہفتہ آپ کی قسمت بدلنے والا ہے یا آپ کو کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کی مالی صورتحال، کیریئر، صحت اور میرج لائف پر ستاروں کی چال کیا کہتی ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ویک برج سنبلہ یعنی ورگو کے حامل افراد کے لیے 15 سے لے کر 21 اپریل کا یہ ہفتہ آپ کو ایک عجیب سی ذہنی کشمکش کا سامنا کروا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا حاکم سیارہ عطارد یعنی کہ مرکری اپنے حبوط کے برج حوت پائسس کے اندر ہے۔ اس لیے اس ہفتے آپ کی سب سے بڑی طاقت یعنی سوچنے، سمجھنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت تھوڑی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس ویک آپ لوگوں کو ذہنی الجھن ہو سکتی ہے۔ آپ خود کو تھوڑا غیر منظم محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ کام جو آپ عام طور پر منٹوں میں کر لیتے تھے اس ہفتے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے یا آپ بار بار اپنی ہی باتوں میں الجھ سکتے ہیں۔ اس ویک آپ کے فیصلوں کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ ہفتہ کسی بھی بڑے یا زندگی بدل دینے والے فیصلے کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ اس ویک آپ کی عقل پر جذبات کا غلبہ غالب رہے گا، جس کی وجہ سے غلط فیصلے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے اہم معاملات کو اگلے ہفتے تک ٹال دیں۔ برج سنبلہ یعنی ورگو کے حامل افراد کے لیے 15 سے لے کر 21 اپریل 2026 کا یہ ہفتہ مالی لحاظ سے ملے جلے اثرات کا حامل رہے گا۔ جہاں کچھ مواقع آپ کے حق میں ہوں گے تو وہیں کچھ جگہوں پر احتیاط کی شدید ضرورت ہوگی۔ ہفتے کے آغاز میں کام کی جگہ پر آپ کی کارکردگی بہتر رہے گی۔ اگر آپ کسی نئی ڈیل یا سیلری میں اضافے کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو 15 اور 16 اپریل کے دن آپ لوگوں کے لیے موضوع ثابت ہوں گے۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے جو لوگ سٹاک مارکیٹ یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ہفتے کا وسط یعنی بدھ اور جمعرات کچھ بہتر نتائج لا سکتے ہیں۔ تاہم اس ویک کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے مارکیٹ کی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ ضرور لیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کسی خاندانی رکن یا سسرال کی طرف سے مالی مدد یا تحفہ ملنے کے امکانات بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس ویک آپ لوگوں کو تھوڑے بہت غیر ضروری اخراجات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ 15 اپریل کے آس پاس آپ کے روزمرہ کے اخراجات میں اچانک اضافے کا خدشہ ہے، خاص طور پر گھریلو اشیاء یا راشن کی خریداری کے دوران آپ بجٹ سے باہر جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہفتے کے دوسرے حصے میں صحت سے متعلقہ ادویات یا کسی پرانے قانونی کاغذات ٹیکس کی ادائیگی پر رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی رسیدوں اور دستاویز کو سنبھال کر رکھیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے بجٹ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ فضول خرچی سے بچیں اور چھوٹی موٹی بچتوں پر توجہ دیں جو مستقبل میں آپ کے کام آئے گی۔ اس ویک جلد بازی میں فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ سورج کی برج حمل میں ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر جلد نتائج حاصل کرنے کی خواہش پڑے گی۔ مالی معاملات میں کسی کی باتوں میں آ کر فوری سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس ویک آن لائن لین دین، ہفتے کے آخری ایام خصوصاً ہفتہ اور اتوار کو آن لائن شاپنگ یا ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے وقت محتاط رہیں۔ پاس ورڈ اور ٹرانزیکشن کی تفصیلات کسی سے شیئر نہ کریں۔ اس کے علاوہ اس ویک قرض کے لین دین میں اس ہفتے کسی کو بڑی رقم ادھار دینے سے بچیں کیونکہ اس کی واپسی میں تاخیر یا دشواری ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ مالی حوالے سے نپی تلی پیش قدمی کا ہے۔ آپ کی آمدنی کے ذرائع مستحکم رہیں گے لیکن آپ کی اپنی طرف سے کی جانے والی جذباتی خریداری بجٹ بگاڑ سکتی ہے۔ اس ویک میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑے معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں تو باریک بینی سے کام لیں اور تمام قانونی نکات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ ہفتہ محنت کا پھل پانے کا ہے، بس اپنی انتظامی صلاحیتوں کو درست سمت میں استعمال کریں۔ وہ تمام کاروبار جن کا تعلق سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سوشل میڈیا مینجمنٹ، یوٹیوب آٹومیشن اور ڈیجیٹل مارکیٹ سے ہے، اس ہفتے کام آپ کا کافی فعال رہے گا۔ نئے کلائنٹس ملیں گے اور پرانے پروجیکٹ سے منافع حاصل ہونے کے قوی امکانات بنے گے۔ وہ افراد جو اکاؤنٹ، ٹیکس، کنسلٹنسی، آڈٹ یا اسٹاک بروکر کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ہفتہ مالی لحاظ سے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی تجزیاتی صلاحیتیں آپ کو کسی بڑی ڈیل میں کامیابی دلوا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن کورس، کتابوں کی خرید و فروخت، کوچنگ سینٹر اور پبلنگ سے وابستہ افراد کے ساتھ اپنی ساکھ بہتر بنانے اور مالی فائدے سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ میڈیا یا مواد سازی سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کی کوئی پرانی ویڈیو یا تحریر دوبارہ توجہ حاصل کر سکتی ہے۔ اگر آپ پراپرٹی کی خرید و فروخت یا کنسٹرکشن مٹیریل کے کاروبار سے ہیں تو ہفتے کا وسط آپ کے لیے کوئی بڑی خوشخبری لا سکتا ہے۔ زمین یا جائیداد سے متعلقہ رکے ہوئے معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔
कोरियर सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी नेटवर्किंग से जुड़े कारोबारी हजरात के लिए यह हफ्ता मसरूफ लेकिन मुनाफा बख्श रहेगा। ऑपरेशनल कामों में तेजी आएगी। इसके अलावा अगर आप शराकतदारी में काम कारोबार कर रहे हैं तो 18 से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान हिसाब किताब में शफाफियत रखिए। नंबर 2, अगर कोई नया सेटअप शुरू करना चाहते हैं यानी किसी नए काम का आगाज करना चाहते हैं तो हफ्ते की मंसूबा बंदी बेहतरीन रहेगी, लेकिन अमल दरामद के लिए मुकम्मल कागजात की तैयारी जरूर कीजिएगा। इस हफ्ते आपकी तबीयत ही आपका सबसे बड़ा असासा होगी। जितना आप बारीकियों पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के करम फजल से इस वीक मुनाफे के इम्कानात उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। बुर्ज शुम्ला यानी विर्गो के हामिल अफराद के लिए 15 से लेकर 21 अप्रैल का यह हफ्ता अज़वाजी जिंदगी के हवाले से गहरी समझ बूझ और मिले जुले जज्बात का आकाश रहेगा। सितारों की चाल बता रही है कि इस दौरान आपको अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को मतवाजन रखने के लिए थोड़ी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। इस हफ्ते आपका हाकिम सैयारा अतारत मरकरी कुछ हसास पोजीशन में है, जिसकी वजह से शरीक हयात के साथ बातचीत के दौरान गलत फहमियाँ पैदा होने का खदशा है। आपकी कही गई कोई आम सी बात उन्हें चुभ सकती है, इसलिए मेरा मशवरा है कि अपनी बात को वाज़ेह अंदाज में बयान करें और बहस मुबाहिसे और ख़ास करके तंज करने से गुरेज करें। हफ्ते के वास्त में आप और आपके जीवन साथी के दरमियान घर के अखराजात या मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी के हवाले से संजीदा गुफ्तगू हो सकती है। अगर आप दोनों मिलकर कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं या घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो ये वक्त मुशावरात के लिए अच्छा रहेगा। 17 और 18 अप्रैल के दिन ताल्लुकात में गर्म जोशी लाएंगे। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके दरमियान किसी बात पर तनाव था तो इन दिनों में वो दूर हो सकता है। शरीक हयात की तरफ से आपको किसी काम में भरपूर तावन और हौसला अफजाई भी इस हफ्ते मिल सकती है, जो आपके एतमाद में इजाफे का बायस बनेगी। इस वीक आप लोगों को मेरा मशवरा है कि तनकीद से बचें। बुर्ज शुम्ला के हामिल अफराद की आदत होती है कि वो बारीक बिनियों पर नजर रखते हैं और अक्सर तनकीद कर बैठते हैं। इस हफ्ते अपने शरीक हयात की खामियों के बजाय उनकी खूबियों पर नजर रखें। इसके अलावा इस वीक जीवन साथी की सेहत इस हफ्ते थोड़ी नासाज रह सकती है, जिसकी वजह से आपको इनकी देखभाल के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी मैरिज लाइफ के लिए सब्र और मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर आप अपनी गुफ्तगू में नरमी रखेंगे और अपने साथी की छोटी छोटी बातों को दरगुजर करेंगे, ये हफ्ता आपके रिश्ते में मजबूती लाएगा। हफ्ते का इख्तिताम किसी यादगार फैमिली डिनर या तफरीक के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। फैमिली मामलात के बारे में बात करें तो बर्ज संबला वर्गों के हामिल अफराद के लिए 15 से 21 अप्रैल का ये हफ्ता जज्बाती ताल्लुकात और खानदानी माहौल के लिहाज से काफी अहमियत का हामिल रहेगा। सितारों की चाल बताती है कि इस हफ्ते आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने के कई मौके मिलेंगे। खानदानी लिहाज से ये हफ्ता जिम्मेदारियों और मेल जोल का मिला जुला इम्तिजाज रहेगा। घर का माहौल मजमूई तौर पर खुशगवार रहेगा। अगर खानदान में कोई पुराना तनाज़ चल रहा था तो इस हफ्ते इसके हल होने की उम्मीद की जा सकती है। बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। इस हफ्ता बहन भाइयों का ताउन रहेगा। आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से किसी किस्म की माली या इखलाकी मदद मिल सकती है। हफ्ते के वस्त में किसी छोटी खानदानी तकरीब या दावत का इम्कान भी मौजूद है। 19 और 20 अप्रैल को घर के किसी मामले पर राय देते वक्त जज्बाती होने के बजाय हकीकत पसंदी से काम ले। आपकी सख्त गोई किसी करीबी अजीज का दिल दुखा सकती है। मोहब्बत के मामलात के बारे में बात करें तो मोहब्बत की जिंदगी में इस हफ्ते सितारे आपको कुछ नए तजुर्बात से गुजार सकते हैं। जो लोग तन्हा सिंगल हैं उनके लिए इस हफ्ते किसी दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात के कभी इम्कानात है। यह मुलाकात किसी समाजी तकरीब या काम के सिलसिले में हो सकती है, जो आगे चलकर गहरी दोस्ती या मोहब्बत में बदल सकती है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता आपके दरमियान एतमाद को मजबूत करेगा। आप अपने साथी के साथ मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले कर सकते। इस हफ्ते आप अपने जज्बात का इजहार करने में ज्यादा पूरा एतमाद महसूस करेंगे। अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट देना या उनके साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाना आपके ताल्लुकात में नई रूह फूंक देगा। इस हफ्ता आप लोगों के लिए मेरा मशवरा है, बातचीत का अंदाज थोड़ा बेहतर रखें। चूँकि आपका हाकिम सैयारा अतारिद मर्क्यूरी है, इसलिए आपकी गुफ्तगू ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। मोहब्बत के मामले में खामोशी के बजाय वजाहत से काम लें ताकि कोई गलत फहमी जन्म न ले। पुरानी बातों को खरीदने से गुरेज करें। खुसूसन मोहब्बत के मामलात में मासी की तलखियां मौजूदा खुशियों को खराब कर सकती है। काम
और घर के दरमियान तवाज़ुन रखें। अपनी पेशा वराना मसरूफियात की वजह से फैमिली या पार्टनर को नजरअंदाज ना करें। एक मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके समाजी हल्के में इजाफे और अपनों के करीब आने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप थोड़ी सी लचक का मुजाहिरा करें तो खानदानी और रोमानवी जिंदगी में खुशहाली के दरवाजे खुल सकते हैं। सेहत के हवाले से बात करें तो बर्ज संबला वर्गो के हामिल अफराद के लिए ये हफ्ता सेहत के हवाले से एहतियात और तवाज़ुन का तकाजा करता है। संबला अफराद कुदरती तौर पर अपनी सेहत के बारे में हसास होते हैं, इसलिए सितारों की मौजूदा पोजीशन आपको कुछ अहम इशारे दे रही है। इस हफ्ते आपके निज़ाम हाजमा पर बोझ बढ़ सकता है। बैरूनी खाने, ज्यादा मसालेदार ग़िज़ाओं और बेवक्त खाने से परहेज करें। पेट में गैस या तेजाबियत की शिकायत हो सकती है, इसलिए हल्की और घर की बनी ग़िज़ा को तरजीह दें। काम की ज्यादती या मुस्तकबिल की फिक्र आपके एहसाबी निज़ाम पर असरअंदाज हो सकती है। इस हफ्ते आपको सर दर्द या आंखों में थकावट महसूस हो सकती है। मेरा मशवरा है रात को देर तक जागने से गुरेज करें और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। योगा या मुराकबा मेडिटेशन आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मौसम की तगयीरी आपके लिए एलर्जी या नज़ला जुकाम का बायस बन सकती है। अगर आपको गर्द और गुबार से एलर्जी है तो बाहर निकलते वक्त एहतियात करें। गले की खराश या हल्के बुखार को नजरअंदाज ना करें और फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हफ्ते के इब्तिदाई 2 दिन बुध और जुमरात आप खुद को काफी मुतहर्रिक महसूस करेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में सुस्ती और काहली गालिब आ सकती है। अपने जिस्म को मुतहर्रिक रखने के लिए रोजाना सुबह की सैर या हल्की वर्जिश को मामूल बनाएं। सेहत के लिए खास मशवरा है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। गुर्दों और मथाने की सेहत के लिए पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गुस्से पर काबू रखें। जज्बाती तनाव आपकी ब्लड प्रेशर की सूरत हाल को मुतासिर कर सकता है, इसलिए छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। अगर कोई पुराना दब्बी मसला सर उठा रहा है तो डॉक्टर से मशवरा करने में देर न करें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता सेहत के लिहाज से कोई बड़ा खतरा तो जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन आपकी जरा सी लापरवाही आपको चंद दिन के लिए बिस्तर पर ला सकती है। अपनी खुराक और आराम का खास ख्याल रखें तो आप पूरा हफ्ता हशाश बशाश गुजार सकते हैं। बुर्ज संबला वर्गों के हामिल अफराद के लिए 15 से 21 अप्रैल का ये हफ्ता बैरून मुल्क सफर या इससे जुड़े मामलात के हवाले से काफी अहम और मुतहर्रिक साबित हो सकता है। इस हफ्ते आपके नवे घर हाउस ऑफ जर्नीज पर सितारों की नजर बेहतर है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफर के कवी इम्कानात बन रहे। अगर आप पहले से किसी सफर की मंसूबा बंदी कर चुके हैं तो ये हफ्ता इस पर अमल दरामद के लिए मौजू है। वो अफराद जो वीजा के हुसूल के लिए कोशां हैं या जिनके इमिग्रेशन के मामलात रुके हुए थे, उन्हें इस हफ्ते कोई अच्छी खबर मिल सकती है। खास तौर पर 16 और 17 अप्रैल के दिन दस्तावेजात जमा करवाने या इंटरव्यू के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। अगर आप नौकरी या कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो कोई नया मुआहिदा या पेशकश सामने आ सकती है। ये सफर मुस्तकबिल में आपके माली हालात को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। तलबा के लिए बैरून मुल्क तालीम के हुसूल के लिए तगोदो करने वाले तलबा को इस हफ्ते किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी या इदारे से मुस्बत जवाब मिलने की तवक्को है। सफर की खुशखबरियों के साथ साथ कुछ बातों का ख्याल रखना भी जरूरी है। जल्दबाजी में कोई भी टिकट बुक करने या सफर पर निकलने से पहले अपनी तमाम दस्तावेजात, पासपोर्ट, वीजा, इंश्योरेंस को दोबारा चेक कर लें। उतारत की पोजीशन की वजह से छोटी सी भूल आपके लिए एयरपोर्ट पर परेशानी का बायस बन सकती है। सफर के दौरान अपने कीमती सामान और मोबाइल फोन वगैरह की हिफाजत करें। अजनबियों पर हद से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। बैरून मुल्क सफर के दौरान खुराक और पानी की तब्दीली आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बैरून मुल्क से जुड़ी खुशखबरियों का है। अगर आपका काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फ्रीलांसिंग से है जिसमें गैर मुल्की क्लाइंट्स शामिल हैं, तो आपको घर बैठे भी बैरून मुल्क से माली फायदा हासिल हो सकता है। इस हफ्ता अगर आपके पास सफर के 2 ऑप्शंस हों तो उसे मुंतखब करें जो आपको तवील मुद्दती फायदा दे, ना कि सिर्फ आरजी तफरीही। बुर्ज सुंबला वर्गों के हामिल वालिदैन के लिए ये हफ्ता बच्चों के हवाले से खासी तवज्जो और थोड़ी मेहनत का तकाजा करता है। इस हफ्ते बच्चों के मिजाज में थोड़ी जिद और चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। वो अपनी बात मनवाने के लिए गैर रिवायती तरीके इख्तियार कर सकते हैं। वो बच्चे जो नौअमरी टीनेज में हैं, वो थोड़ी आज़ादी की ख्वाहिश करेंगे। इन पर हद से ज्यादा सख्ती करने के बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करना बेहतर होगा। हफ्ते के आखिर तक इनके मिजाज में ठहराव आएगा और वो आपकी बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। तालीमी लिहाज से ये हफ्ता बच्चों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, बशर्ते कि इनकी तवज्जो बरकरार रहे। हफ्ते के इब्तिदाई अय्याम में
बच्चों का दिल पढ़ाई से अचक सकता है या वो मोबाइल और गेम्स में ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं। जिन बच्चों के इम्तिहानात करीब है या रिजल्ट आने वाला है, उनके लिए सितारों की पोजीशन मुवाफिक है। इनकी मेहनत रंग लाएगी। ये हफ्ता बच्चों को किसी नए तालीमी कोर्स या हम नसाबी सरगर्मी जैसे मसवरी या खेल में लगाने के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के मामले में इस हफ्ते थोड़ी सुस्ती और लापरवाही महंगी पड़ सकती है। बच्चों को नज़ला, जुकाम या गले की इन्फेक्शन से बचाने की जरूरत है। ठंडे मशरूबात और बाहर की गैर मायारी खुराक से परहेज करवाएं। इस हफ्ता बच्चों में तवानाई की कमी महसूस हो सकती है, जिसकी बड़ी वजह नींद का पूरा ना होना या मुतवाज़न ग़िज़ा की कमी हो सकती है। इनकी खुराक में फलों और दूध का इस्तेमाल। खेल कूद के दौरान बच्चों का ख्याल रखें, खुसूसन हफ्ते के वस्त में मामूली चोट लगने का अंदेशा है। वालिदैन के लिए मेरा खास मशवरा है, इस हफ्ते बच्चों को आपके कीमती वक्त की जरूरत है। उनके साथ बैठकर उनके मसाइल सुने, इससे उनका मिजाज भी बेहतर होगा और वो तालीम पर भी तवज्जो देंगे। हौसला अफजाई कर। अगर बच्चा पढ़ाई में थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है तो उसे डांटने के बजाय छोटे इनामात का लालच देकर पढ़ाई की तरफ राग़िब करें। बच्चों की दोस्ती और उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर खामोशी से नजर रखें ताकि वो किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। बढ़ाए। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बच्चों की तरबियत के हवाले से सब्र और शफकत का है। आपकी थोड़ी सी तवज्जो उनकी तालीमी कारकर्दगी और सेहत को चार चांद लगा सकती। इस हफ्ता सितारों के मनफी असरात को ज़ायल करने और कामों में रुकावट दूर करने के लिए सदका बेहतरीन ढाल है। सब्ज रंग की अशिया का सदका करें। आपका सैयारा अतारत है, इसलिए सब्ज रंग की अशिया का सदका देना सबसे ज्यादा अफजल है। आप हरी सब्जियां जैसे पालक या कद्दू या हरी दाल किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। परिंदों को हरा दाना जैसे मूंग की दाल या बाजा डालना आपके लिए जहनी सुकून और रिस्क में कुशादगी का बायस बनेगा। अगर मुमकिन हो तो बुध के दिन अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ रकम छुपाकर किसी बेवा या यतीम की मदद के लिए निकाल। जहनी इंतशार से बचने और कारोबारी व तालीमी कामयाबी के लिए या हफीजु या सलाम। चलते फिरते कसरत से इसका विर्द कर। ये आपको हादसात, बीमारियों और दुश्मनों की शर से महफूज। या आलिमों, तालीम और जहनी सलाहियतों में इजाफे के लिए रोजाना 150 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। ये बच्चों के लिए भी बेहतरीन है ताकि उनका पढ़ाई में दिल लगे। सूरत उद्दहा। अगर माली मामलात या बैरून मुल्क सफर की वजह से परेशानी है तो रोजाना फजर या इशा के बाद 3 मरतबा सूरत उद्दहा पढ़ें। इंशाअल्लाह नाउमीदी खत्म होगी और कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। वजीफा करने के लिए एक वक्त मुकर्रर कर ले तो उसकी रूहानी तासीर बढ़ जाती है। सिदका देते वक्त ये नियत करें कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपकी तमाम आफात और परेशानियां दूर फरमाए। वज़ाइफ पढ़ते वक्त बावजू होना और किबला रू होना ज्यादा फजीलत का बायस है। अल्लाह पाक इस हफ्ते को आप और आपके अहले खाना के लिए खुशियों और बरकतों का जरिया बनाए।